Assalamualaikum. Today we are going to start new chapter that is integration. One of the great achievements of classical geometry was to obtain formula for the areas and volumes of triangles, spheres, and cones. In this chapter, we study a method to calculate the areas and volumes of these shapes and some other general shapes. The method we develop is called integration. Integration is a tool for calculating much more than areas and volumes. The integral has many applications in statistics, economics, the sciences, and engineering. In the last lecture, we have studied about the applications of differentiation, that is extreme points, relative or local extreme points, critical and stationary points, first derivative test and second derivative test to find the extreme points of the function, absolute extreme points, Rolle's theorem, and mean value theorem. In today's lecture, we will study about the antiderivatives, the indefinite integral, integration formulas, properties of indefinite integrals, integration by substitution. After going through today's lecture, you will learn the concept of antiderivative. You will be able to find the integration of simple functions, and you will learn the method of U substitution to calculate the integration of some complicated functions. Now going to the definition of antiderivatives. A function f is called an antiderivative of a function f on a given open interval if derivative of capital F is equal to small f of x for all x in the interval. यानी कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कब होगा? अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं f इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f. कैपिटल F इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f because derivative of capital F is equal to small f for all x in the interval. For example, we have capital F 1 by 3 x cube. This is antiderivative of function x square. ये x square का antiderivative क्यों है? क्योंकि जब हम capital F का derivative लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसको differentiate कर दें तो आपके पास क्या आता है? x square आ जाता है. ठीक है, जब आप इसको differentiate करेंगे आपके पास x square, इसका derivative आपके पास क्या होगा? 1 by 3 3x square. तो 3 cancel हो जाएंगे, तो you will get x square. So x square, 1 by 3 x cube is antiderivative of x square. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर let's suppose मैं यहाँ पे फंक्शन ले रही हूँ f of x is equal to 1 by 3 x cube plus 4. ठीक है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, so here the derivative of x cube divided by 3 is x square plus 0. You will again get x square. Means 1 by 3 x cube plus 4 is antiderivative of x square. यानी आपके पास x square के डिफरेंट एंटीडेरिवेटिव्स हो सकते हैं. यानी यहाँ पे अगर आप कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, तो आपके पास इसका ये किस x square का ही एंटीडेरिवेटिव होगा. मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 by 3 x cube plus c is also an antiderivative of x square. ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे कोई नंबर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब भी आपके पास वो x square का ही एंटीडेरिवेटिव रहेगा. तो इसलिए हम लोग आगे इसको ये जो आपके पास है इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं. आगे हम इसको डिस्कस करेंगे. तो यही बात इस थ्योरम में एक्सप्लेन की हुई है. इफ कैपिटल F इज एनी एंटीडेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f on an open interval, then for any constant c
the function f of x plus c is also an antiderivative on that interval. Moreover, each antiderivative of f on the interval can be expressed in the form of f of x plus c by choosing the constant c appropriately. यानी अगर कैपिटल f स्मॉल f of x का एंटी-डेरिवेटिव है तो कैपिटल f of x plus c भी स्मॉल f of x का एंटी-डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और ये c जो है इसकी कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो हम लोग फाइंड करते हैं। आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। अब हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रल्स क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। जब हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कैपिटल एफ का डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्मॉल एफ, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग और anti-differentiating the function f produces an antiderivative of the form capital F of x plus c. To emphasize this process, equation 1 is recast using integral notation this. देखें यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हमने एंटी डेरिवेटिव को डिस्कस किया, ठीक है। बेसिकली derivative and antiderivative are inverse operators of each other, यानी ये एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव बेसिकली इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर्स होते हैं। यानी अगर मैं बोथ साइड पे, ये हमारे पास जो साइन आप देखते हैं ये डेरिवेटिव की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ f इज f of x। अब ये एंटी डेरिवेटिव के लिए ये साइन यूज किया हुआ है और इस साइन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी इंटीग्रेशन ऑफ f इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये साथ में c का मैंने आपको बताया था कि हम लोग c क्यों लगाते हैं लास्ट लेक्चर में, कि अगर f of x के लिए भी उसका डेरिवेटिव f of x है और f of x प्लस c के लिए भी उसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास साइन है इसको हम इंटीग्रल साइन बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और ये सी आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये जो आपके पास इंटीग्रल है इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन का फिर से डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, तो हमारे पास वापस इस साइड पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इधर हमने डेरिवेटिव बोथ साइड्स पे अप्लाई किया, इस साइड पे जब हम डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेती हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन है, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा और सी का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप किसी इंडेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास फिर से ओरिजिनल फंक्शन f आ जाता है। These are some formulas for different functions. यहाँ पे देखें हम ऑलरेडी डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं तो हम उसी से रिलेट करके इंटीग्रेशन के फार्मूलाज फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर्स होते हैं। आपने पढ़ा था कि x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आपने हमेशा इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल जब भी आप फाइंड करते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने ज़रूर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डेरिवेटिव्स के लिए पावर रूल को पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x की पावर में r+1 है, तो पावर रूल क्या है, r+1 बाहर डेरिवेटिव जो हम लेंगे r+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, ठीक है, और
x की पावर में आपके पास क्या आ जाएगा r+1, यानी जो आपकी पावर है उसमें से -1 कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है r+1, तो ये r+1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 -1 से कैंसिल होगा, सो वी आर लेफ्ट विद एक्स आर। ठीक है, यानी अगर हम बोथ साइड पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे आपके पास ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर r विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर r+1 डिवाइड बाय r+1। यानी जब हमारे पास कोई पावर फंक्शन आ जाता है, यानी x की पावर है कोई, तो उसकी पावर में 1 ऐड होगा और जो भी न्यू पावर बनेगी उससे हमने डिवाइड कर देना है फंक्शन को, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला फॉर r नॉट इक्वल टू -1 के लिए है। ठीक है, -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है r, -1 के लिए ये फार्मूला नहीं है, r-1 के लिए। सिमिलरली आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x इज sin x, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c। तो इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, सारे इंटीग्रेशन अगर आपको पता है तो वही आपके पास डिफरेंशिएशन आपको पता है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला वहीं से आपके पास फाइंड हो जाएगा। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखें, आपके पास x² है। ठीक है, पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन में क्या है, हमने पावर को ऐड करना है, जो भी न्यू पावर है उससे डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास x³ डिवाइडेड बाय 3 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे r आपके पास 2 था। नेक्स्ट में आपने सबसे पहले, ये आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने उसको न्यूमरेटर में पावर फंक्शन को ले आना है, तो इट विल बी x रेज़ टू द पावर -5। अब यहाँ पे आपके पास r -5 है। ठीक है, r -5 है, तो आप यहाँ पे x रेज़ पावर r+1 डिवाइडेड बाय r+1। ठीक हो गया, तो इट विल बी, ये हमारे पास हो जाएगा x रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। इट विल बी -1 डिवाइड बाय 4 x रेज़ टू पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। यहाँ पे हमारे पास r 1/2 के इक्वल है, तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 3/2 और यही पावर नीचे डिवाइड भी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, इसको फर्दर हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो स्क्वायर रूट 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी पावर 3 है। Next, there are properties of the indefinite integrals. Suppose that capital F of x and capital G of x are antiderivatives of small f of x and small g of x respectively, and c is a constant, then a constant factor can be moved through an integral sign, that is जिस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी अगर आपके पास डिफरेंशिएशन से बाहर लिख सकते हैं, तो सेम प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के लिए भी है कि अगर कोई इस फंक्शन के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी कांस्टेंट, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास c कैपिटल F ऑफ x प्लस ये दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी ये आपके पास इंटीग्रेशन है f ऑफ x, इधर डिफाइन हुआ हुआ है कैपिटल F ऑफ x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। इसी तरह हमारे पास अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो हम इस पर इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज कैपिटल F एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज कैपिटल G, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। Similarly, same is the case with the difference of two functions. Next example, in next example we have two parts.
फर्स्ट पार्ट में आपके पास इंटीग्रेशन ये गिवन है, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, ठीक है। और cos x की इंटीग्रेशन हम टेबल लास्ट स्लाइड्स में गिवन है, तो उस टेबल से हमारे पास cos x की इंटीग्रेशन sin x की इक्वल होती है, सो इट विल बी 4 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. इन द b पार्ट वी हैव दिस फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शंस का एडिशन है, तो हम इन दो फंक्शंस का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंडिविजुअली हमने इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दिया है, उसके बाद पावर रूल यूज़ किया। यहाँ पे r आपके पास 1 था, तो 1 + 1 2 x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड यहाँ पे आपके पास r2 है, सो इट विल बी x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन एग्जाम्पल 3 वी हैव दिस इंटीग्रेशन जिसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो हम और 4 टर्म्स का एडिशन और डिफरेंस है। यहाँ पे हम हर टर्म पे इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन, और जहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे। उसके बाद आपके पास सिंपल पावर रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो x6 का इंटीग्रेशन x पावर 7 डिवाइड बाई 7 और 3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे -2 साथ में मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x के इक्वल है और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपके पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये फंक्शन गिवन है cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। यहाँ पे हमने साइन की पावर को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। वी कैन राइट इट एज sin x, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय sin x बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये कोसिकेंट x के इक्वल होता है, और cos x डिवाइड बाय sin x इज कोटेंजेंट x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास कोसिकेंट x का डेरिवेटिव कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x cot x है, तो इसका मतलब है कोसिकेंट x cot x का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x होगा, ठीक है। तो ये आप टेबल से भी देख सकते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन द बी पार्ट वी हैव रैशनल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने t⁴ यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की हर टर्म के साथ इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। यहाँ इससे डिवाइड किया तो 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ डिवाइड किया तो t⁴ एंड t⁴ कैंसिल आउट हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद -2। ये आपके पास बन गई। अब उसके बाद यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, इसको पहले हम न्यूमरेटर में ले आएंगे, ये हमारे पास t⁻² हो जाएगा, एंड दिस इज -2। दो टर्म्स का डिफरेंस है, तो इस पर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी t -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है। सो इट विल बी t⁻1 डिवाइड बाय -1, एंड -2 इंटीग्रेशन से बाहर साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 की इंटीग्रेशन t हो जाएगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। तो ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, सो इट विल बी -1/t -2t प्लस c। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पे एक न्यू टेक्निक सीख रहे हैं कि अगर आपके पास थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं तो उनकी इंटीग्रेशन आप किस तरह से ले सकते हो, ठीक है। So this method is integration by substitution. Suppose that capital F is an antiderivative of small f. Capital F is integration of small f. Then अगर capital F का antiderivative है तो इसका मतलब है derivative of f will be equal to small f, ठीक है। हम पहले कैपिटल F का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे आपका जो कैपिटल F फंक्शन है ये कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है, यानी कैपिटल F फर्दर डिपेंड कर रहा है एक और फंक्शन पे, दैट इज g, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया है। चेन रूल हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो आउटसाइड फंक्शन यहाँ पे कैपिटल F है, उसका डेरिवेटिव f प्राइम हो गया, इनसाइड फंक्शन g ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव g प्राइम हो गया।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिखें, बोथ साइड पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दिस इंटीग्रल साइन विल बी कैंसल आउट विद दिस डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली साइड ये है, ये आपके पास रह जाएगी एफ जी ऑफ एक्स प्लस सी। हमेशा इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम जी ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास, हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि f इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f इज इक्वल कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f, ठीक है। यानी हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F को हमने यहाँ पे f लिख दिया, ठीक है। क्रॉस कैपिटल F इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f, ठीक हो गया। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी जो आपका इनर फंक्शन है उसको आपने विद न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। आपने इनर फंक्शन जी ऑफ एक्स को यू के इक्वल ले लिया। अगर आप यू का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इट विल बी जी प्राइम ऑफ एक्स। इसको फर्दर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह यू आ जाएगा, जी प्राइम की जगह हमारे पास दिस इज जी प्राइम डी एक्स, ठीक है। इसकी जगह हमारे पास डी यू आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ यू प्लस सी। यानी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा जो फंक्शन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, उसमें जो भी इंटीग्रेशन होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, डी यू इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल, और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू यूज u सब्स्टिट्यूशन। In the first step, look for some composition f of gx within the integrand, for which the substitution u is equal to g of x and du is equal to g prime of dx produces an integral that is expressed entirely in terms of u and its differential du. This may or may not be possible. सबसे पहले आपने कंपोजिशन फंक्शन देखना है इंटीग्रेंट में, और उसमें आपने u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स यानी इनसाइड फंक्शन, और ज़रूरी नहीं है हमेशा इनसाइड फंक्शन है, डिफरेंट सिचुएशन में हमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली हमारे पास इनसाइड फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं u, और साथ में हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको हमने अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है, और हमारा जो इंटीग्रल है वो इंटायरली ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है। अगर नहीं होता इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन सही नहीं ले रहे, या इस पर कोई और मेथड अप्लाई होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, if you are successful in step 1 then try to evaluate the resultant integral in terms of u. Again this may or may not be possible, ठीक है। अगर स्टेप 1 में आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो आपने स्टेप 2 में इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और ये सॉल्व होना भी ज़रूरी नहीं है हमेशा सॉल्व हो जाए, समटाइम्स सॉल्व हो जाएगा, समटाइम्स पॉसिबल नहीं होगा और हमें दूसरे मेथड्स की तरफ जाना पड़ सकता है। In step 3, if you are successful in step 2, then replace u by g of x to express your final answer in terms of x. अगर आप स्टेप 2 में सक्सेसफुल हो गए हैं तो फिर आपने फिर से u को रिप्लेस कर देना है g of x से, ठीक है। जो आपने फर्स्ट स्टेप में u को g of x दिया था, आपने वापस u की जगह g of x सब्स्टिट्यूट कर देना है, ताकि आपका फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x आ जाए, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x था, तो आपका आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हमने ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करनी है, ठीक है। बिस में देखें आपके पास कंपोजिशन फंक्शन है, ये बेसिकली इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इनसाइड फंक्शन, और आउटसाइड फंक्शन हमारे पास इसकी कोई पावर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी इनसाइड फंक्शन के इक्वल। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इट विल बी 2x, यहाँ से हमारे पास du की वैल्यू आ जाएगी 2x dx, ठीक है। अब हमने u
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी यू इज इक्वल टू 2x dx के हमने सब्सटीट्यूट करना है इस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हमने सब्सटीट्यूट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह यू रेज़ टू द पावर 50, उसके बाद 2x dx इज इक्वल टू डी यू, और यहाँ पे डी यू आ जाएगा। देखें आपका इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो गया है। तो अब यहाँ पे सिंपल पावर रूल यूज़ करेंगे, तो पावर यहाँ पे 50 है यानी r इज़ 50, तो इट विल बी 50 प्लस 1 51, और इसी पावर से डिवाइड हो जाएगा ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें वापस यू को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यू की जगह वापस हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। एग्जाम्पल 2 में देखें, एग्जाम्पल 2 में आपके पास ये फंक्शन है, ये भी बेसिकली कंपोजिशन फंक्शन है। इसमें इनसाइड फंक्शन यानी जी ऑफ एक्स आपके पास एक्स प्लस 9 है, और आउटसाइड फंक्शन आपके पास साइन एक्स है। ठीक है, तो इनसाइड फंक्शन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यू, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है डी यू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एक्स प्लस 9 की जगह हमने यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। ठीक हो गया, हमारे पास सिंपल सा एक इंटीग्रेशन बन गया है। तो इसके साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज होता है, सो इट विल बी माइनस कॉज यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड स्टेप पे आ जाए, थर्ड स्टेप में हमने यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर देना है एक्स प्लस 9 से। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में आपके पास cos 5x है, यहाँ पे आपका इनसाइड फंक्शन यानी g ऑफ x 5x है एंड आउटसाइड फंक्शन इज cos x। तो सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे u इज इक्वल टू 5x, इसका डेरिवेटिव लिया तो du इज इक्वल टू 5dx, बोथ साइड पे आप डिफ्रेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे आपके dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इज 1/5 du। सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये इंटीग्रल बन जाता है 1/5 इज कांस्टेंट। इसको इंटीग्रेशन से बाहर आप लिख सकते हैं, cos u की इंटीग्रेशन आपके पास sin u होती है, सो इट विल बी 1/5 sin u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद u को वापस सब्स्टिट्यूट कर दें 5x, तो इट विल बी फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में देखें आपके पास यहाँ पे इनसाइड फंक्शन है, दिस इज 1/3x 8 is inside function and outside function is its power। ठीक है, तो हम इनसाइड फंक्शन u को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/3x माइनस 8, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 1/3 du इक्वल टू 1/3 dx। यहाँ से हम dx की वैल्यू ले सकते हैं, dx के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3 du। सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पर dx की जगह 3 du लिख दिया और इधर 1/3x माइनस 8 की जगह u और उसकी पावर में 5 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे पावर रूल यूज़ होना है तो हम पहले सारी चीज़ें न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो u रेज़ पावर 5 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इट विल बी u रेज़ पावर -5। 3 को हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, तो पावर रूल यहाँ पे यूज़ किया तो हमारे पास -5 प्लस 1 इज़ -4, और -4 साथ में नीचे डिवाइड भी हुआ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने u को वापस सब्स्टिट्यूट कर देना इन टर्म्स ऑफ x, ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी फंक्शन। एग्जाम्पल 4, अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोई इनसाइड आउटसाइड फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन बेसिकली नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसको देखें, ये डिनोमिनेटर में बता रही हूँ, डिनोमिनेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस √3x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, √3x हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, u इज इक्वल टू √3x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी du इज इक्वल टू √3 dx। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इंटीग्रेशन में, तो ये आपके पास हो जाएगा dx किसके इक्वल होगा, यहाँ से आप इसको dx के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1/√3 du इज इक्वल टू d। ठीक है, ये आपने dx की
वैल्यू लिख दी, 1/√3 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया और डी यू इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, यानी इंटीग्रेंट में आपके पास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 1 प्लस दिस इज बेसिकली यू स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर लें तो इट विल बी 3x स्क्वायर, ठीक है, तो ये यू स्क्वायर है, ठीक है। नाउ डी यू डिवाइड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 1/√3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू प्लस सी। अच्छा, ये फार्मूला जो है ये आप लोग आगे इन्वर्स उसमें भी पढ़ेंगे, और ये जो चार्ट आपको गिवन था लास्ट स्लाइड में उसमें भी ये फार्मूला आपको इंटीग्रेशन के गिवन है। बाकी इसको फर्दर डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने u की जगह वापस उसकी सब्स्टिट्यूट कर दी इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम्पल 5 में आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनर फंक्शन साइन एक्स है और आउटर फंक्शन स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने इनर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स इज कॉज एक्स। यहाँ से आप ले लें डी यू इज इक्वल टू कॉज एक्स डी एक्स, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू डी यू। तो इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो साइन एक्स यू के इक्वल है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह यू स्क्वायर आ गया एंड कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। देखें कितना सिंपल आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया है। अब इस पर पावर रूल अप्लाई करें, तो यहाँ पे R2 है तो पावर ऐड होगी, 1 ऐड होगा पावर में, तो ये u क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u को वापस सब्स्टिट्यूट कर दें साइन एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो इट विल बी साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। यहाँ से आप डी यू की वैल्यू ले लें, डी एक्स इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली डी यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, और हम लोग ये 2 को इस साइड पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डी यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करेंगे अपने ओरिजिनल इंटीग्रेशन में। यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स की जगह यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और बाकी ये जो आपके पास बाकी है डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स, डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स, ये किसके इक्वल है 2 डी यू, इसकी जगह 2 डी यू लिख दिया। अब देखें कितना सिंपल आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट जो है कितना सिंपल हो गया है। तो अब यहाँ पे देखें q को इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे, कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेल्फ डेरिवेटिव होता है और सेल्फ उसका इंटीग्रेशन भी सेम ही आपके पास होता है, सेल्फ इंटीग्रल भी होता है ये, ठीक है। ई रेज पावर यू का इंटीग्रेशन भी ई रेज पावर यू ही होगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम u को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्क्वायर रूट एक्स, तो दिस इज फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x। नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पे देखें आपके पास इनसाइड फंक्शन x-1 है, आउटसाइड फंक्शन आपके पास पावर है, ठीक है। तो u को हमने इनसाइड फंक्शन ले लिया x-1, इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव आपके पास du इज इक्वल टू डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी यूज़ हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से देखें आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यू प्लस 1, ठीक है, 1 को साइड पे ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 1 स्क्वायर, ये आपके पास यू प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला ओपन कर दें, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ओरिजिनल इंटीग्रल में। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, और साथ में यहाँ x-1 की जगह u सब्स्टिट्यूट किया स्क्वायर रूट u, और dx किसके इक्वल था du के, यहाँ पे d यानी आपका कंप्लीट इंटीग्रेंट u में कन्वर्ट हो गया है। अब स्क्वायर रूट u को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 3 टर्म्स का एडिशन आ जाता है, ठीक है। तो इन पर हम इंडिविजुअली इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे,
और इनकी इंटीग्रेशन लेंगे तो सब पे पावर रूल अप्लाई होगा, तो हमारे पास ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी और ये साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने स्टेप 3 पे जाना है, यानी u को वापस x-1 सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। सो दिस इज फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये इंटीग्रल है, इंटीग्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेम जो मैंने आपको बताया था, इसमें से क्या किया है, ए स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ये 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास इसको हम इनर फंक्शन कंसिडर करते हैं, इसको हम u ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव डी एक्स डिवाइड बाई ए है। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास सब्सटीट्यूशन के बाद ये हो जाएगा 1 बाई ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स डिवाइड बाई ए डी यू के इक्वल है, ठीक है। ये पूरी टर्म आपके पास डी यू के इक्वल है। उसके बाद 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई यू के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने यू लिख दिया, यू स्क्वायर, ठीक है। अब इस टाइप की इंटीग्रेशन आपने फार्मूला में पढ़ी होगी, दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू, और ये 1 बाय ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वापस हम यू की जगह x डिवाइड बाय a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so the final answer will be 1 divided by a tangent inverse of x divided by a plus c। यानी अगर आपके पास इस टाइप की इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट आ जाता है, तो उसका आप डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन, ये सब्स्टिट्यूशन किए बगैर आप यहाँ पे इसका ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये वाला। तो ये इन्हीं सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये कुछ फार्मूले बने हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ये फर्स्ट वाला तो लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया। आप ये इक्वेशन 6 और 7 को भी ट्राई करें सेम इसी मेथड से, ठीक है, यूज सब्स्टिट्यूशन से, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यू हैव एग्जाम्पल 9। यहाँ पे अगर आप इन तीनों में से कंपेयर करें तो ये आपके पास ये 6 वाला फार्मूला बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास a किसके इक्वल है, a आपके पास k√2 के इक्वल है, तो a स्क्वायर इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करते हुए हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाय a है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल u यूज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल x है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a हमारे पास k√2 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप डायरेक्टली, अगर आपको फार्मूला पता है तो सारी सब्स्टिट्यूशन किए बगैर आप डायरेक्टली भी उसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द समरी of today's lecture. First, a function capital F is called antiderivative of the function small f on a given open interval if derivative of capital F is equal to small f, ठीक है। कैपिटल F एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल f का अगर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f। नेक्स्ट आपके पास एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं और इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, एंड दिस कैपिटल एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। और ये जो आपके पास है इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल की कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर आपके पास सम या डिफरेंस है दो फंक्शंस का, उसका अपना इंटीग्रल लेना है तो आप दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन लेने के बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिशन फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। इनर यानी इनसाइड फंक्शन को यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं,
और हम लोग इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि हम जब ओरिजिनल इंटीग्रेंड में उसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रेंड कम्प्लीटली u में ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसमें x बाकी ना रहे। मेथड ऑफ u सब्स्टिट्यूशन। ये आपके पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इसको आप लोग ट्राई करें, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं सॉल्व करने में तो वो आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।